Next point is magnetic flux density due to a short bar magnet, that is magnetic dipole, at a point on the axial line, that is magnetic axis, that is end on position, or it is called longitudinal axis. यहां पर अगर एक पॉइंट है इसके ऊपर, व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? फॉर्मूला ध्यान रखिए, म्यू जीरो म्यू आर अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. डू यू रिमेंबर द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल? 1 upon 4 pi epsilon 0 epsilon r 2p upon d square minus l square whole to the power 3/2. इसका डेरिवेशन भी हमने किया था. सेम पैटर्न पर यहां डेरिवेशन आप करेंगे. सेम यहां पर अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हेयर ऑन न्यूट्रल एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू? इट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d square plus l square whole to the power, it is 3/2. मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, राइट? इन केस ये आपके रियल फॉर्मूले थे. इन केस इफ यू अप्रोक्सीमेट इट, अप्रोक्सीमेट मींस शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए व्हाट इज L? L is less and less than D. You can neglect it. डी स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए. डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल. व्हाट इज इट? 2m अपॉन डी क्यूब. अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला. हियर इट इज डी के कंपैरिजन में एल को नेग्लेक्ट कर दीजिए. डी स्क्वायर कैंसिल. इट इज m अपॉन डी क्यूब. तो ये आपके अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूले आ जाते हैं. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल. मैग्नेटिक पोटेंशियल at longitudinal axis, it is given by mu 0 upon 4 pi, it is m upon d square, and on neutral axis, south pole and north pole, they will produce equal potential but in opposite polarity. So what is the resultant potential on neutral axis? It is 0. That's why it is called neutral axis. जैसे हमने देखा था, माइनस चार्ज के कारण प्लस चार्ज के कारण, प्लस चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल जितना, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल उतना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. सो रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑन न्यूट्रल एक्सिस इज 0, और इट इज ऑल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इट इज ऑलवेज 0. नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस d from it in longitudinal and transverse condition is. अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करूंगा मैं. लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन में व्हाट इज द फॉर्मूला? 2m अपॉन डी क्यूब. ट्रांसवर्स कंडीशन में व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू 0 म्यू आर अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब. डिवाइड कर दीजिए, सब कैंसिल. 2:1 is the answer. Important point. 2:1. Next point. The short magnets of equal dipole moments m are fastened perpendicularly at their centers. The magnitude of the magnetic field at a distance d from the center on the bisector of the right angle is. Two magnets. One short magnet is this of magnetic moment m. Second magnet is this. Identical magnets each of magnetic moment m. इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन यहां पर what is the magnetic flux? It is mu 0 upon 4 pi root 2 m upon d cube. Not very much important it is. Now the questions based upon magnetism, type 1 fundamental questions. First is the source of a magnetic field is isolated magnetic pole. Isolated magnetic pole is not possible in nature. It is not possible कि अलग से नॉर्थ पोल या अलग से साउथ पोल आपको मिल जाए. ये डिस्कार्ड कर दीजिए ए आंसर. बीटा स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, रुका हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. सी इज
current loop, yes, whenever current flowing through a circular loop or rectangular loop or any loop, it produces magnetic field. Charles Oersted discovered magnetic effect of current in the year 1820. D is none of these. Okay. Then second is the major contribution of magnetism in substances is due to, correct answer is beta, spin motion of electrons. Dominate spin motion ही करता है. Question number 4th. In case of a bar magnet, lines of magnetic induction start from the north pole and end at the south pole. No, run continuously through the bar and outside. इसके ऊपर से एक क्वेश्चन और आता है. Inside the magnet, the magnetic lines travel from south to north. Outside the magnet, lines travel from north to south. ये आप चाहे तो नोट कर लें. It is important one. Fifth is a permanent magnet attracts all substances, attracts only ferromagnetic substances, attracts ferromagnetic substances and repels all other. C is okay. Delta attracts some substances and repels other. Because ferromagnetic is not restricted. Paramagnetic को भी क्या करता है? ये attract करता है. Whether the attraction is small or of dominating value, but ये attract तो करता है. So correct answer आप देखेंगे तो it is delta, attracts some substances and repels other. Delta is correct answer. Sixth is important question. Magnetic field do not interact with stationary electric charges, moving electric charges, stationary permanent magnet, moving permanent magnet. मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन केवल मैग्नेटिक फील्ड से ही होगा. व्हेन द नेचर ऑफ द टू फील्ड्स इज सेम, देन ओनली इंटरेक्शन इज पॉसिबल. एक इंसान जो है वो एक इंसान से ही बातचीत करता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको? ऐसा तो नहीं हो सकता है. मैंने देखा एक पर्सन ग्वाला था, वो गाय को कुछ कुछ समझा रहा था, गाय भी ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मेरे को लगा कि यार बड़ा इंटरेक्शन हो रहा है इनके अंदर, ये बोल रहा है, ये समझ रही है. बाद में वो कुछ काम से अंदर चला गया ग्वाला, तो फिर भी मैंने देखा गाय ऐसे ऐसे कर रही थी. बाद में पता चला कि वो मक्खियां उड़ा रही है. सो इंटरेक्शन इज पॉसिबल. गाय गाय से बात कर सकती है, इंसान इंसान से बात कर सकता है ना. सो इंटरेक्शन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन सिमिलर टाइप्स ऑफ फील्ड्स. सो बी, सी एंड डी, इन सबके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. ए के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है. स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. Seventh is magnetic flux is, it is vector quantity, it is a scalar quantity, both none. It is a scalar quantity. Why? Because we write phi is equal to B dot A. It is equal to BA cos theta. So this is a scalar product B, magnetic flux density and area. So it is a scalar quantity. Eighth is below figure 1 and 2 represent lines of forces. Which is correct statement? Figure 1 represents magnetic lines of force. ये continuous है, देखिए गोल बनती हुई है, so it is magnetic lines of force. Figure 2 represents the magnetic lines of force. ये एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पे खत्म हो गई है. ये क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो सकती हैं. सी, फिगर 1 रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. नो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नेवर कंटिन्यूअस. हाँ, अगर डाइपोल होगा तो ठीक है, एक बार प्लस से निकलती हुई माइनस पे जाएगी, पर माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाती है. वो माइनस से प्लस दोबारा आती नहीं है. D is both figure 1 and 2 represent magnetic lines of forces. No, correct answer is A. Important questions of type 2, magnetic material. Ferromagnetic owe their properties due to, what is it? Filler inner subshell? No. मैंने आपको डोमेन थ्योरी बताई थी कि एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, एक क्लॉकवाइज है. तो जब डोमेन पार्शियली फिल्ड होता है, देन ओनली इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट. सो वैकेंट इनर सबशेल्स, पार्शियली फिल्ड इनर सबशेल्स, जिसको आप डोमेन बोलते हैं. करेक्ट आंसर इज सी. Domain formation is the necessary feature of ferromagnetism. C is correct answer. Then जो example होते हैं कि which represents ferromagnetic, which is paramagnetic, ये important होते हैं. जैसे 4th क्वेश्चन नंबर है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जांपल पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में. एल्यूमिनियम, क्वार्ट्ज, निकल, बिस्मिथ, विच इज निकल. फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल बोलना सुगम. फेकोनिस, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील. हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक? कॉपर सल्फेट, लिक्विड, हाइड्रो, ऑक्सीजन, वाटर एंड एयर. Water and air. Give the examples, more examples of. गोरखप्रसाद सिंह, नारकर, आज बिटवा प्रेमले. बिटवा को बिहाइले, पूरा बिहारी बोलिए. नहीं, जी गोल्ड एंड लाइक दिस, आपको डिकोड करते आना चाहिए. गोल्ड, सिल्वर, फॉस्फोरस, मरकरी, बिस्मिथ, टिन, वाटर, कॉपर, एयर, हाइड्रोजन, लाइक दिस, लेड. देन ये एग्जांपल्स आप कर लेंगे. इसमें कोई डाउट है? अप टू 15, अप टू 15 एनी क्वेश्चन? नो. 16th क्वेश्चन नंबर इज ओके. A uniform magnetic field exists in certain space in the plane of the paper and initially it is directed from left to right. When a rod of soft iron is placed parallel to the field direction, the magnetic lines of forces passing between the rod will be represented by. For ferromagnetic material, mu r is very high, so it welcome the magnetic flux to pass through the magnetic material. So वो लाइंस पैरेलल भी जा रही होंगी तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनका डेंस कर लेगा, लाइंस को अपनी तरफ अपने से पास कर देगा. बिकॉज म्यू आर इज वेरी हाई, लाइंस ऑफ फोर्सेस फील लो रिलक्टेंस इन पासिंग थ्रू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. रिलक्टेंस समझते हैं? व्हाट इज रिलक्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताया था मैंने. सो ये in case if it is diamagnetic material, so it provide high reluctance, lines of forces ऐसे जाएंगी और इससे बचकर के निकलने की कोशिश करेंगी. This is what? This is the property of diamagnetic material. इस तरह से lines of forces बन जाएंगी. जैसे C ऑप्शन आप देखेंगे, it is the example of diamagnetic material. Okay. 17th question number important. A sensitive magnetic instrument can be shielded very effectively from outside field by placing it inside a box of teak wood, plastic material, soft iron of high permeability, a metal of high conductivity. What is the correct answer? Soft iron. This method is called magnetic screening. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग होती थी. If you want to protect any instrument, any device from stray electric field, आपको एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, आप क्या करो, इसको एक गुड कंडक्टर मैग्नेटिक बॉक्स के अंदर रख दो. लाइंस, स्ट्रे मतलब आवारा. जैसे कि हम यहां पर हैं, यहाँ पे ट्यूबलाइट्स ऑन है, फैन चल रहे हैं, हेलोजन चल रही है, ये एग्जॉस्ट है, ये है, लाइक दिस. तो इनकी भी क्या होती है, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है. स्ट्रे मींस आवारा, भटकती हुई है ना. अब ये अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट यहां रखेंगे, दे विल अफेक्ट इट, उसकी रीडिंग को ये क्या करेंगी, चेंज करेंगी, इफेक्ट करेंगी. इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट इट, जैसे घर के हम चारों तरफ बाउंड्री क्यों बनाते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को. किससे? स्ट्रे एनिमल्स और जो इंट्रूडर्स टाइप के लोग होते हैं उनसे, है ना. जो आवारा घूम रहे हैं, उन्होंने देखा अरे घर में कोई नहीं है, उठाया सामान लेके भाग गए, तो हम बाउंड्री बना लेते हैं. दैट इज शील्डिंग कॉल्ड. हियर इट इज द बाउंड्री. जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आती हैं, जैसे ये कॉपर है, कॉपर इज गुड कंडक्टर, तो ये क्या करेगा, अपने में से पास करने के लिए वेलकम करेगा फ्लक्स को. इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारा का सारा इसमें से पास हो जाएगा. इट वॉन्ट इफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा इससे इंटरेक्शन. बारिश से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, आप क्या करते हो, बारिश रोक दो, या तो बारिश रोक नहीं सकती, फिर क्या करते हो आप, स्क्रीनिंग करते हो अपने आप को, है ना, प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को. बारिश आती है एंड इट इज बाईपास्ड
ये यहां से बाईपास हो जाती है, ये बाईपास हो गई। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। सेम स्क्रीनिंग इज हियर। ये बारिश आ रही है और ये आपने एक छतरी लगा दी, बाईपास होकर के आगे निकल गई। सिमिलरली इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, इफ यू यूज good magnetic material, for example iron, for example nickel, cobalt, etc. so magnetic lines of forces भी ऐसे behavior show करेंगी, they just pass through bypass and this can protect our instrument. So if you want to protect an instrument from stray electric field, keep it inside a box of good conducting material. If you want to protect it by stray magnetic field, keep it inside the box of good magnetic material. एक ऐसा मटेरियल जो गुड कंडक्टर भी है, गुड मैग्नेटिक मटेरियल भी है, आयरन। आयरन इसीलिए आप कभी देखिए कंप्यूटर के केसेस जो होते हैं, कंप्यूटर का केस आयरन का बना होता है, एलॉय का बना होता है, देखा है आपने, है ना। और भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, जो उनके ऊपर आप देखिए आयरन के कवर से उसको कवर किया जाता है। व्हाई नॉट कॉपर, व्हाई नॉट एल्यूमिनियम? आयरन ही क्यों? बिकॉज आयरन इज गुड मैग्नेटिक, गुड एज वेल एज गुड इलेक्ट्रिक मटेरियल, गुड कंडक्टर इट इज। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये। 18th, consider the following statements. Assertion A, the poles of magnet cannot be separated by breaking it into two pieces. मैग्नेट के दोनों पोल्स को आप ब्रेक करके, तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते। रीजन आर, द मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ where a magnet is broken into two equal pieces. जब मैग्नेट को आप ब्रेक करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट भी हाफ हो जाता है। ए ऑप्शन, both A and R are true and R is the correct explanation of A. दोनों ट्रू तो हैं। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या फर्क पड़ता है, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ अ मैग्नेट इज टेकन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ? M. व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ? M. लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पर जाती हैं एंड दे फॉर्म क्लोज पाथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की जो कैलकुलेशन होती है, जो कंसीडरेशन होती है, वो लाइंस ऑफ फोर्सेस से होती है। मोर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस एमिटेड, मोर इज द पोल स्ट्रेंथ, लेस एमिटेड, लेस स्ट्रेंथ। एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो एमिट होती हैं वो एरिया पे डिपेंड करती हैं। मोर एरिया अवेलेबल, मोर लाइंस, लेस एरिया अवेलेबल, लेस लाइंस, लेस पोल स्ट्रेंथ। अगर आप मैग्नेट को इस तरह से ब्रेक करते हो, परपेंडिकुलर टू लेंथ, टू पार्ट्स में आपने मैग्नेट को ब्रेक किया, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? यहां पे आपने ब्रेक किया, ऑलरेडी नॉर्थ पोल यहां पे था, ऑलरेडी साउथ पोल यहां था, नॉर्थ पोल यहां पे बना रहेगा, साउथ पोल ये बना रहेगा, एक और साउथ पोल यहां आ जाएगा, एक और नॉर्थ पोल यहां आ जाएगा। लाइंस ऑफ फोर्सेस, एरिया तो चेंज नहीं हुआ, उतनी ही अवेलेबल है ना। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस रिमेन्स सेम, पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम। अगर आप इस तरह से ब्रेक करते हो, सो इट विल बी इन टू पार्ट्स, ईच हैविंग पोल स्ट्रेंथ m। फर्क किस पे पड़ा? लेंथ पे फर्क पड़ा। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट हियर? इनिशियली द टोटल लेंथ इज कंसिडर्ड एज 2l, so what is the magnetic movement? m into 2l, it is written as 2ml. Now in this condition, what is the length of each part? Half, that is ll. What is the new magnetic movement? Pole strength remains same, length is l, ml की जगह आप क्या लिख सकते हैं? m by 2. So what happened? Magnetic movement is halved. Pole strength remains same. Okay. Second case, number 2. If the magnet is divided parallel to length into two equal parts. अगर आपने इस मैग्नेट को, सेम मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू लेंथ डिवाइड किया था, अभी आप पैरेलल टू लेंथ हाफ हाफ कर दीजिए, क्या होगा? इट विल बी स्प्लिटेड इनटू टू मैग्नेट्स। देखना, लेंथ हर एक पार्ट की कितनी है? इट इज 2l, लेंथ इज 2l, पहले भी 2l थी, अभी भी 2l है। व्हाट हैपेंड? एरिया इज हाफ्ड,
pole strength of each part will be halved. Poles remain same, north pole here, south pole here. Okay, in this condition magnetic pole strength is halved. What is the magnetic moment? Magnetic moment is pole strength multiplied by length. 2 cancel, फिर से ml आ गया. What is ml? m by 2. So in both the cases, if you divide it into this part and this part, dipole moment will be halved. If a magnet is divided n equal parts in this category, pole strength of each part remains same, magnetic moment of each part, pole strength remains same, magnetic moment of each part will become what? M by n. In this case, magnetic dipole moment will become m by n and magnetic moment also become m by n. Is it clear or not? एक चीज और, ये एक्चुअली बार मैग्नेट यूज करते हैं लाइक रॉड, लाइक सिलेंड्रिकल रॉड, लाइक रेक्टेंगुलर रॉड. इसका जो इनर्शिया होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनर्शिया ऑफ दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है थिन रॉड के लिए. m is mass, here it is mass. So अगर आपको बोलेंगे if a magnet is divided into 2 equal parts, देखिए क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर. So एक पार्ट ये, एक पार्ट ये. What is the inertia of each part now? तो inertia of each part is equal to mass is halved, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, mass becomes m by 2 and length also becomes l by 2. L by 2 square, it is what? 2 square, 4 2s are 8, 1 by 8 ml square, and ml square की प्रोपोर्शनलिटी किससे थी? I के साथ थी. So in this condition movement of inertia, आगे हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में मैग्नेट को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराया जाएगा. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स I by 8 if it is halved. और अगर जितने n पार्ट्स में डालोगे, मास बिकम्स m by n, length becomes m by n. What is it? ml square n cube. जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे इस केस में परपेंडिकुलर टू लेंथ, इट शुड बी I upon n cube. ऑलराइट. सिमिलरली इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो. इनर्शिया इन दिस केस बिकम्स प्रोपोर्शनल टू ml स्क्वायर है. मास बिकम्स जितने पार्ट में डिवाइड करोगे उतने पार्ट में m by 2. लेंथ रिमेन्स सेम. So it is what? It is I upon 2. Length पे कोई फर्क नहीं पड़ा. If it is divided into n equal parts, in this case, what is I dash? I dash is equal to I upon n. ये ध्यान में रखिएगा, important. So 18th question number is what? Correct answer is beta. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Beta is correct answer. दोनों ठीक है, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज रिड्यूस टू हाफ देन मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पीसेस. ओके. देन 19th क्वेश्चन नंबर इज इंपॉर्टेंट वन. इफ अ डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन इज poured into a U tube and one arm of the U tube is placed between the poles of a strong magnet with the meniscus in a line with the field, then the level of the solution will. ये एक प्रॉपर्टी है. दोनों मटेरियल्स अगर आप लेते हैं फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक टुगेदर, मतलब इनकी प्रॉपर्टी तो सेम होती है, एंड डायामैग्नेटिक. इफ यू ट्यूब में एक सॉल्यूशन को लिया गया, दिस सॉल्यूशन इज, इफ इट इज फेरोमैग्नेटिक एंड इफ इट इज केप्ट, मैं 2 प्रॉपर्टी अभी आपको अलग से समझा रहा हूं इस तरह से अपने. तो व्हाट विल हैपन? द मेनिस्कस विल rises up in one limb. इस लिम्ब में ऊपर. कब है? फेरोमैग्नेटिक के केस में. In paramagnetic case also the liquid level will rises up, but the rise is not very large, small. In case of diamagnetic solution, the liquid level, the meniscus will be depressed. वो नीचे आ जाएगा. Okay? एक तो ये प्रॉपर्टी. दूसरी एक प्रॉपर्टी और होती है इन अ वॉच ग्लास. वॉच ग्लास में एक पाउडर लिया गया. कौन सा पाउडर? फेरोमैग्नेटिक पाउडर लिया गया. ओके. आयरन का कोई स्मॉल पीसेस, चिप्स टाइप के छोटे छोटे लिए गए. ओके. व्हाट विल हैपन?
if the magnetic poles are near to each other, पास पास है, so what will happen, magnetic field strength इनके बीच में बीच ज्यादा होगी, हाई होगी. The tendency of the ferromagnetic material is to always move from weaker magnetic field towards strong magnetic field. So this powder will be accumulated in watch glass. घड़ी का कांच समझते हैं ना, ऐसा कॉनकेव थोड़ा सा ऐसा होता है, उस टाइप का. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में इट इज कॉन्वेक्स इन द मिडिल, कॉनकेव एट द एंड्स. इन केस ऑफ, अगर आप यहां पर लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सो व्हाट विल हैपन बताएंगे. द नेचर इज सेम, ओनली द कॉन्सेंट्रेशन इज लेस. कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा, जो हीप बीच में बनता है, जब कॉन्वेक्सिटी बीच में आती है वो लेस हो जाएगी. दिस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल. फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल बताएंगे क्या होगा. It is convex at the ends and concave in the middle for diamagnetic materials. Second case, ये first case होता है. Second case, when poles are far apart, poles को थोड़ा थोड़ा दूर रख दिया, अब क्या होगा. दो बल्ब जलाइए, दो बल्ब पास पास रखे हुए हैं, इसने कुछ लाइट दी, इसने कुछ लाइट दी. इंटेंसिटी विल बी मोर एट द सेंटर ऑफ द टू. दोनों बल्ब के बीच वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी हाई होगी. इसने प्रोड्यूस की, इसने प्रोड्यूस की. यहां पे बल्बों के पास में लेस है. व्हेन द टू बल्ब्स आर फार अपार्ट, दोनों बल्ब को दूर दूर रख दो, अब क्या होगा. इस बल्ब के पास ज्यादा लाइट है, इस बल्ब के पास ज्यादा लाइट है, सेंटर में कम लाइट है. बहुत दूर रख दो, 2 मीटर दूर रख दो. एक ट्यूबलाइट ये, एक ट्यूबलाइट ये. इस ट्यूबलाइट के पास ज्यादा रोशनी दिख रही है, इस ट्यूबलाइट के पास ज्यादा रोशनी दिख रही है. बीच में आप देखिए लेस लाइट है. दीवार को देखिए, ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाली दीवार चमक रही है, इधर वाली दीवार चमक रही है, पर बीच में आप देखिए ट्यूबलाइट की रोशनी कम पड़ रही है. यस और नो. यस. सो अगर आपने वॉच ग्लास को लिया है और पोल्स आर फार अपार्ट, यहां पे इंटेंसिटी लेस होगी, एंड्स पर इंटेंसिटी हाई होगी. इफ यू कीप फेरोमैग्नेटिक पाउडर इन इट, फेरोमैग्नेटिक पाउडर क्या होगा, एंड पर ज्यादा होगा और मिडिल में कम हो जाएगा. तो दो केसेस बन गए. दिस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक व्हेन पोल्स आर फार अपार्ट. और इसका उल्टा कर दीजिए इस केसेस में, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल व्हेन पोल्स आर फार अपार्ट, then it will be convexity will be less, nature will be same. But in case of diamagnetic material, what will happen, the tendency of the diamagnetic material is to move from stronger to weaker, so it will be convex in the middle. थोड़ा सा इस टाइप से ये आएगा diamagnetic. This is paramagnetic. This is second case when the poles are keep at a distance. In case nothing is given, आपको ये नहीं बोला गया कि पोल्स फार हैं कि पास हैं, तो ये वाला केस बाय डिफॉल्ट आपको लेके चलना है. वन क्वेश्चन इज देयर. दो क्वेश्चन है वैसे, ठीक है. एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक जैसे आइडेंटिकल पीस ऑफ आयरन है, इसमें से एक मैग्नेटिज्म गेन कर चुका है, इट इज मैग्नेटाइज्ड और इट इज मैग्नेटाइज्ड. एक मैग्नेट है और एक आयरन पीस है ना. इनमें से एक जो है वो आयरन का पीस है एंड वन इज मैग्नेट. विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग एनी एल्स, हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज मैग्नेट एंड विच वन इज आयरन पीस. क्योंकि जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा. आप ऐसे रखोगे तो भी अट्रैक्शन तो हो गई होगा, है ना, रिपल्शन भी नहीं होगा. अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि विच वन इज मैग्नेट एंड विच वन इज आयरन पीस. एनीबडी? नहीं, सस्पेंड नहीं करना है आपको, फ्रीली. मैंने कहा ना, विदाउट एनी अदर एड, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनीथिंग. बस यही चीज दो आपको दी गई है और आपका दिमाग आपको दिया गया है, इफ एनी. सो आपको बताना है कि कैसे कौन मैग्नेट है, कौन आयरन पीस है.
यस, जयप्रकाश, अभिषेक, पल्लवी. So it's a property of the magnet that whenever we place an iron piece in its center, it राइट. यस यस यस. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? देखिए, अगर एक मैग्नेट आपके पास है, से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैग्नेट. पोल्स आर एट दिस लोकेशन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. एट द सेंटर इट इज न्यूट्रल. नॉर्थ टू साउथ आप जाएंगे, इंटेंसिटी डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, बिकम जीरो, and then increases maximum. If it is iron piece, so iron piece will feel attraction which decreases, becomes zero at the middle, and then increases maximum. So this is what iron piece, this is what magnet. In case if it is reversed, this is iron piece, this is magnet. Magnet का north pole ये मान लीजिए, north pole will get attracted and it remains attracted throughout. पूरे टाइम पे अट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि ये तो आयरन पीस है, ये तो मैग्नेट का पोल है ना. सो इससे क्या होगा कि आप डिटेक्ट कर सकते हो कि विच वन इज मैग्नेट एंड विच वन इज आयरन पीस. सेकेंड क्वेश्चन इज कि एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका m. इफ यू डिप द मैग्नेट इन वाटर, अगर आप मैग्नेट को पानी में डुबो देंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यस, जल्दी जल्दी बताते जाइए. कौन क्या बताता है? विनीता. सेम रहेगा. सुगम, एनी आंसर यू वांट? इफ सेम रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट विल रिमेन सेम. दिव्या, मैग्नेटिक मूवमेंट विल बिकम जीरो. एनीबडी? राजुल, सेम. अभिषेक, अभिलाषा, सेम. नथिंग. सिंपल है. इफ द मैग्नेट इज डिप्ड इन वाटर, अगर एक मैग्नेट को अगर आप पानी में डुबोएंगे तो वो गीला हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस ऑफ टाइप 3, हीटिंग ऑफ अ मैग्नेट. क्वेश्चंस आर इजी. क्वेश्चन नंबर 1 to 5. एनी डाउट? व्हाट इज क्यूरी पॉइंट? It is the temperature at which magnetic susceptibility becomes zero. Ferromagnetic materials will get converted into paramagnetic material. Diamagnetic पे कोई असर नहीं होता. Okay, like this. ग्राफ्स सारे ओके हैं. 1 to 10. Any doubt? Nothing. 11, 12, 13. No. Questions of type 4. Inverse square law. Inverse square law के questions में second question number, the distance between the poles of a horseshoe magnet is 10 centimeter. दो पोल्स के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर दिया जाता है. दिस ओके. एंड पोल स्ट्रेंथ इज 10 to the power -4 एम्पियर मीटर. एम्पियर मीटर इज SI यूनिट, सेंटीमीटर इज CGS यूनिट. The magnetic field induction at point P midway between the poles is. आप क्या करें, यहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल को डाल दें. 1 वेबर का नॉर्थ पोल है ना, उसके कारण से टोटल फील्ड यहां पे कैलकुलेट करिए कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. बिकॉज पोल स्ट्रेंथ इज गिवन, सो दिस पोल विल प्रोड्यूस अ फोर्स. या इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होगा? व्हाट इज इंडक्शन? बेसिकली डिफाइंड एज force acting on unit north pole. So mu0 upon 4 pi m by it is d square. North pole try to repel north pole and south pole try to attract north pole. दोनों क्या करोगे? ऐड करोगे. तो मैं इसको 2 times कर दूं. It is 2 times. What is it? mu0 4 pi into 10 to the power -7 upon 4 pi. What is pole strength? 10 to the power -4. What is the distance? Distance इसका half है. 10 का half 5 centimeter and square. Simplification. 4 pi cancel out. 2 into 10 to the power. It is -7 -4 अभी छोड़ दीजिए. 5 square 25 into 10 to the power 2 to the 4. This cancelled out. It is equal to
22/25, मैं क्या करता हूं इसको 200 करके 10 to the power -9 लिख लेता हूं इजी करने के लिए. 25 से कैंसिल आउट 8 टाइम्स. इट इज 8 into 10 to the power -9 टेस्ला इज द आंसर. Type 4 question number 3. The magnetic induction and the magnetic field inside the iron core of an electromagnet is 1.07 Weber per meter square and 150 ampere per meter. Then the relative permeability of this iron is B is 1.07 Weber per meter square, H is 150 ampere per meter. The relation between B and H, B is equal to mu 0 mu r H. 1.07 is equal to, what is mu 0? 4 pi 10 to the power -7 mu r. What is H? 150. So mu r is equal to 1.07 upon 4 pi. -7 goes into numerator, 10 to the power 7 upon 150. Correct answer is delta. Now questions of type 5, pole strength and magnetic moment. I have done these questions. 4th and 5th में आपको already discuss करा चुका हूँ. 6th question number done. North south north south north south, each and everyone will cancel out. Resultant will be 0. 7th में भी formula डाल दीजिए direct. 8th 9th 10th done. 8th is magnetic moment of atomic neon. Neon is inert gas. All the shells are completed. 8 electrons, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना 0. एंड फॉर हाइड्रोजन इट इज टेकन एज फंडामेंटल. हाइड्रोजन का क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास में, एक ही प्रोटॉन है उसके पास में, तो उसको क्या करते हैं फंडामेंटल मानते हैं. एंड इट इज डिनोटेड एज म्यू बी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल. टाइप 6 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1 and 2. ओके. Second question number is there. Magnetic field intensity is defined as the magnetic moment per unit volume. No. What is it called? Magnetic field, magnetic intensity of magnetization it is called. Magnetic moment per unit volume. B. Magnetic induction force acting on a unit magnetic pole. Yes, beta is correct answer. Now the questions of type 7. First question number important. देखिए. The magnetic potential at a distance 10 centimeter from the midpoint of a point of a magnetic dipole on a line inclined at an angle of 60 degree. This angle is given as 60. Theta is given as 60 degree. With the axis is 3 CGS. CGS EMU, electromagnetic unit. CGS में 2 यूनिट चलते हैं. एक ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट वाज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एंड सेकंड इज EMU, ये भी CGS है. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट CGS. सो द मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरा म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू CGS में कितनी लेनी चाहिए? 1 लेनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में अगर आप लेते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल? V बोलना कितना होता है? m अपॉन d स्क्वायर cos थीटा. दैट इज m वी हैव टू फाइंड आउट. d कितना है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर 100 cos 60 डिग्री 1/2. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? That is equal to 300 into 2. M is equal to 600 और EMU यूनिट इसको आप लिख सकते हैं. और EMU यूनिट कितना होता है? What is magnetic moment? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है ना यूनिट. किसी भी कॉइल के लिए what is the magnetic moment? याद करिए NAI, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था. टर्न छोड़ दीजिए. एरिया मीटर स्क्वायर, करंट एम्पियर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ M? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. CGS में ये हो जाएगा एब एम्पियर और मीटर स्क्वायर विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर. सो करेक्ट आंसर इज 600 एब एम्पियर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. Second question number is the magnetic moment of a short bar magnet is 50
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, AM square. Magnetic field intensity is due to this magnet at a distance d 20 centimeter from its midpoint on axial line, एक्सिस के ऊपर यहां पर, एंड इट्स इक्वेटोरियल लाइन उतने ही डिस्टेंस पर यहां पर. देखिए मेरे को मालूम था कि ये रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है. ठीक है. इफ आई सी द ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1.25 into 10 to the power minus 3 Tesla and 0.625 into 10 power minus 3 Tesla. It may be possible. 2:1 का रेशियो दे रहा है ये. एक्सिस पे डबल होती है फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे हाफ होती है, 2:1 का रेशियो है. बीटा आंसर में दोनों इक्वल हैं, नॉट पॉसिबल. सी आंसर में 1:2 की स्ट्रेंथ का रेशियो है, नॉट पॉसिबल. डेल्टा भी इक्वल है, नॉट पॉसिबल. करेक्ट आंसर इज ए. और नहीं तो फिर सॉल्व करिए, इसकी स्ट्रेंथ निकालिए और व्हाट इज द वैल्यू, एंड इट इज μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d क्यूब यहां पर, और यहां पर निकालिए μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब करके सॉल्व करके. वैसे भी निकाल सकते हैं. व्हाट इज μ0 4 पाई 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई. ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेट होती है, आपको याद होगा. m इज गिवन एज 50 एंड d क्यूब 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटी मीन्स 10 टू द पावर -2, इसका क्यूब. सॉल्व करिए, इसको कितना आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू -7, 52 100, तो दो पावर और कैंसिल, -5. इसको ओपन करिए, 10 टू द पावर -5 अपॉन 20 का क्यूब 800, 8000 एंड 3 2 6. 1 2 3 3 -3 -3 -3 -2. इट इज 1 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर -2, या 10 यहां लेंगे आप तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला ये आएगी यहां, और इसका हाफ होगा यहां. सो करेक्ट आंसर इज ऑल्सो ए. देन क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 ऑल क्लियर. 10th क्वेश्चन नंबर देखिए. द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मे बी कंसीडर्ड टू बी ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ओरिएंट अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अभी हम पढ़ेंगे कि अर्थ की जो एक्सिस है उससे थोड़ा सा टिल्ट 17 डिग्री टिल्ट करके एक मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसा मानते हैं. नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर. मैग्नेटिक साउथ यहां होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है. यहाँ पे लाइंस इस तरह से निकलती हैं, गोल घूम करके ऐसे आती हैं. ऐसा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका नेचर ऐसा होता है कि वी कैन कंसीडर दैट अ शॉर्ट मैग्नेट इज प्लेस्ड एट द सेंटर इन दिस वे, राइट. दिस इज इक्वेटोरियल लाइन. अर्थ का भी इक्वेटर यही होता है ना. और ये उसको इसकी एक्सिस. तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, पोल्स, और ये कहां पढ़ते हैं, इक्वेटर. सो क्वेश्चन पूछते हैं, the earth's magnetic field may be considered to be due to a short magnet placed at the center of the earth and oriented along the magnetic south north direction. The ratio of the magnitude of the magnetic field on the earth's surface of magnetic equator to that at the magnetic poles. इक्वेटोरियल लाइन पर और पोल्स पर सेम डिस्टेंस अगर आप माने RR, तो कितना रेशियो होता है, 1:2 होता है कि नहीं. एक मैग्नेट के लिए होता है ना, अभी हम ये पढ़ रहे थे. सो करेक्ट आंसर इज ए, 1:2. कभी निकालने को भी आएगा तो आप फॉर्मूले में डाल के ऐसे निकाल सकते हैं. यू जस्ट कंसीडर दैट इट इज अ रियल मैग्नेट प्लेस्ड. नेक्स्ट आर्टिकल इज मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and a magnetic dipole. Magnetic dipole means short bar magnet. It is placed in it. See, this is the magnet. इसको आपने ऐसे रख छोड़ा है. What will happen? This is the line. Means जरूर एक बड़ा मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है with north pole here on the left side. एक बड़ा मैग्नेट इस तरफ रखा हुआ है, south pole on the right side. That's why the lines of forces are emitting from north pole to, और कहां जा रही है, साउथ पोल पे.
इंटरनली हो सकता है साउथ से नॉर्थ जोड़ दिया हो इन्होंने, बट दिस इज द सिचुएशन। ये एक ऐसी फील्ड है लेफ्ट टू राइट एंड इट इज कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस द लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, ये चली जा रही हैं। इफ यू कीप अ मैग्नेटिक पोल इन इट, मैग्नेटिक डाइपोल आपने इसके अंदर रख दिया, याद करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते थे, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आता था, प्लस इधर आता था, यहां पे साउथ पोल इस तरफ आएगा। क्यों आएगा? नॉर्थ पोल ट्राई टू अट्रैक्ट साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑन द राइट साइड, दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऑफ दिस फील्ड ट्राई टू अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, ये खींचेगा अपनी तरफ। अगर आपने मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से, इस तरह से रख दिया मान लीजिए, then what will happen? North pole, south pole. North pole will feel a force in this direction. What is the value of the force? Pole strength multiplied by magnetic induction. Electric force कितना होता था? QE. Magnetic force will be MB. South pole, North pole इसको क्या करेगा? या वैसे ही छोड़ दो, South pole always experiences a force opposite to the direction of lines of forces. North pole experiences a force in the direction of lines of forces. ये दो forces इनके ऊपर लगेंगे if you displace it from the mean position. दोनों मिलकर के क्या करेंगे? एक टॉर्क बनाएंगे। ये टॉर्क क्या करेगा? इसको मैग्नेट को वापस घुमा करके इस पोजीशन में ले आएगा। अगर आप इसको इस तरफ घुमाएंगे तो फिर ये टॉर्क इसको वापस ऐसे ले आएगा, फिर आप ऐसे घुमाओगे, फिर ये टॉर्क ऐसे घुमाएगा, ऐसे करके ऐसे घुमा दिया आपने, फिर ये टॉर्क घुमा करके ऐसे ले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। एक पेंडुलम को ले लो, धागा बांधा, बॉब, इसको लटका के छोड़ दो, इट इज स्टैंडिंग वर्टिकली। आपने पेंडुलम को थोड़ा सा ऐसे किया, छोड़ा, वापस वो इसी पोजीशन पे आके रुक जाएगा। इस पोजीशन पे ले जाइए, छोड़िए, वापस वो इसी पोजीशन पे आएगा। इन ग्रेविटी ओनली अट्रैक्शन इज देयर। ग्रेविटी में केवल अट्रैक्शन होता है, नो रिपल्शन इज देयर। आप इसका आधा भाग हटा दो, साउथ पोल हटा दो, केवल इतना कंसीडर करो। ऐसे देखो इसको, यहां से ये ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं और ये सिंपल पेंडुलम, ये बॉब। अगर आप इसको यहां झुलाओगे, छोड़ोगे, वापस इधर ही आ जाएगा, इधर करके छोड़ोगे, वापस इधर ही आ जाएगा। क्यों ऐसा होता था? बिकॉज ऑफ द टॉर्क। mg इसका वेट, mg साइन थीटा इसको क्या करता था? वापस रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता था, इसको वापस ले आता था। यहां आप छोड़ते थे, mg cos थीटा इज मेकिंग टेंशन, mg sin थीटा इसको वापस ले आता था। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। ये पेंडुलम की स्थायी संतुलन की अवस्था कही जाती थी। इस पेन को भी आप देखिए, ये देखिए, ये वापस आ गया। ओके, सो व्हाई इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। कितना टॉर्क जनरेट होता है वो देखें अपन। अगर आपने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दिस एंगल इज थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज डिफाइंड एज दोनों में से कोई भी एक फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय perpendicular distance between the two forces, F into what is the perpendicular distance? ये perpendicular distance है। ये क्या है? length of the magnet. If it is considered as capital L, this angle is theta, then this distance d upon L, बोलना कितना? sin theta. What is d? L sin theta. यहां पुट कर दीजिए, that is equal to L sin theta. What is F? M into B into L into sin theta. But what is ML called? Magnetic moment. What is the torque acting at an angle theta? Torque is equal to MB sin theta. Because magnetic moment is vector quantity, its direction is from south pole to north pole. B is vector quantity, its direction is from left to right. So torque is also vector quantity, can be written as M cross B. This is the cross product of magnetic moment and B, magnetic flux density, magnetic field intensity. What is the direction of the torque? Rotate magnetic moment vector M. जैसे कि ये B का डायरेक्शन है,
आपने टिल्ट कर दिया ऐसे साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम, रोटेट एम इन द डायरेक्शन ऑफ बी, घुमाइए। स्क्रू क्या होगा अगर इस बोर्ड पे लगा होगा तो टाइट होगा, टाइट होगा तो कहां जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मींस क्रॉस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ऐसा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ टाउ इज गिवन बाय कॉर्क रूल, कॉर्क स्क्रू रूल इट इज कॉल्ड। The direction is such that the dipole tend to set itself parallel to the field strength B. If theta is 90 degree, what is torque? It is M. B की वैल्यू 1 ले लो अगर, what is sin 90? Sin 90 is 1. Torque is equal to magnetic dipole moment, tau is equal to M. So the dipole moment M of the magnetic dipole is numerically equal to the torque required to keep the dipole perpendicular to uniform magnetic field of unit strength, right? यहां से M की यूनिट निकालेंगे हम, what is M? Tau upon B, what is tau? Newton into meter, and what is B? Weber per meter square. So what is the unit? Newton into meter cube upon Weber, या बोले तो टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर, एंड बी का यूनिट टेस्ला, इट इज न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला, और इट इज 9 सेंटीमीटर अपॉन गॉस, राइट? Work done in rotating a magnet in a magnetic field through an angle theta from equilibrium condition is, इस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है पैरेलल टू द फील्ड, साउथ पोल लेफ्ट, राइट पर नॉर्थ पोल। अगर आप इसको थीटा एंगल से रोटेट करना चाहते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? हम जैसे पेंडुलम को मूव कराते ही ऐसे कितना वर्क करना पड़ता, ये दिखना है। दिस एंगल इज थीटा, व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू? वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए इस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, नॉर्मल फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा, ओके। यहां पर नॉर्मल पोजीशन पर थीटा की वैल्यू कितनी है? ये कितनी है? 0। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज कॉस 0? 1, इट इज माइनस एम बी। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, it is equal to minus mb cos theta minus of minus mb. If you take mb common, it is 1 minus cos theta. इसके ऊपर लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मैग्नेटिज्म का शायद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन।